Okay, so Prajot, let me record your final selection in IIT Mandi in SPCOM department. So let's start from your side. Prajot, this entire interaction is to make you profile member on YourPedia. So I want your certain information like when did you graduate, from where you graduated, your college name, your BTech CGPA, your grade score, your category, and with this, from where you got the calls or selections, and finally where you're going to join. That detail. Okay, sir. Okay, sir. I have completed my engineering in electronics and telecommunication from Pune University and 2020. Currently, I am working as an associate software engineer at Accenture. I have started preparing for getting third year. I have joined also classes, weekend classes. After that, I gave a first attempt in 2020, but didn't. I am able to. I am not able to score good at that time. So I started again preparing for 2021. At this time, I have scored 560 score at a rank of 1672. After that, I got a call, various call for MS interview from IIT Delhi, IIT Madras, and IIT Bombay also. For MTech admission, I got a call from IIT Indore, IIT Bhilai, and yes, IIT Bhilai. After that, in MTech round, I got admission. First round, I got IIT Ropar for SPCOM. In second round, I got IIT Patna and IIT Ropar for communication. And in third round, I got IIT Mandi. And from that, in fourth round, I got IIT Mandi. And in fifth also, I got IIT Mandi. So, Prajot, this SPCOM is signal processing and communication, right? Yes, yes. Okay. So, Prajot, मेरे को बताओ आपका grade score कितना था? 560. And your category? OBC, sir. And your CGPA, Prajot? 8.79. 8.7. So, आपने you mentioned that you got some MS calls also, interviews also. Can you tell me which IIT, which course? Yes, मुझे दिल्ली में VLSI के लिए नहीं मिला था. दिल्ली में कम्युनिकेशन के लिए आया था. और मद्रास में कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हाँ, और बायोमेडिकल के लिए आया था. ओके ओके. सो IIT मद्रास एंड IIT दिल्ली में आपको आया था, राइट? यस सर. ओके. सो आपको ये COAP राउंड में प्रज्योत क्या क्या मिला था बिफोर IIT मंडी? COAP राउंड में बिफोर IIT मंडी पटना, IIT पटना मिला था कम्युनिकेशन के लिए, और IIT रोपर मिला था SPCOM के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए. Okay, so you are also going for a CCMT or not? Yes. So you'll go for CCMT also. Okay, Prajot, anyhow, if you get into CCMT and if you change your this thing, I mean from IIT Mandi, which you are finally selected now, then you please record your session again with me, because we will be saving it as your profile member. तो जब भी कोई नया अपडेशन होगा तो आप उसमें अपना चेंज कर लेना, उसमें एडिशन कर देना प्रज्योत. अच्छा, let me ask you one more thing now, Prajot. What was your final year BTech project? आपने उसको सीरियसली किया था या वैसे ही किया था? First my question. नहीं, सीरियसली किया था सर. मेरा सिग्नल प्रोसेसिंग डोमेन में था, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में. अच्छा. तो उसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कम्युनिकेशन के लिए जब IIT मद्रास में MS इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था. मेरा IIT मद्रास में बायोमेडिकल के लिए इंटरव्यू था, पूरा इंटरव्यू उसी प्रोजेक्ट पे हुआ था. ओके. तो मतलब अच्छे तरीके से किया था आपने उसको, राइट? हाँ. सो टाइटल था क्या? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रज्योत? Analysis of EEG signal for brain computer interface. Okay, so if you've done that nicely, as you know, maybe you have also sent your WhatsApp message to me. एक अपने प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग, उसको PPT के ऊपर मेरे साथ एक रिकॉर्ड करना, वो भी हम आपको इसी के साथ सेव करेंगे. We'll save that project here only. Okay. Maybe some student wants to take your guidance on that particular direction, and we record it nicely so that वो आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा, right? जैसे ये जो अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, you can have this recording also from us, our team, and also the project का रिपोर्ट जो आप मेरे साथ अपना रिकॉर्डिंग करेंगे, that also you can keep with you. That will become your profile thing. As a profile member, आपका portfolio बन जाएगा. So we will also make your portfolio. At the same time, you can also save it. Now, Prajot, my last question to you is, what you want to do after this?
after MTech in IIT Mandi SPCom, what is there in mind roughly? What is there in your mind? What do you want to do? सर मुझे तो ज्यादातर इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग साइड में इंटरेस्ट है, इसलिए Okay. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि स्पॉट राउंड में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्पॉट राउंड में गया भी तो फिर मुझे जो ब्रांचेस मिल पाएंगे टॉप आईटी में, लाइक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, Right. फोटोनिक इंजीनियरिंग, आरएफ इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, Right. Right. उससे अच्छा लग रहा है कि मुझे जो फ्यूचर स्कोप देखा जाए तो मशीन लर्निंग में अच्छा है, और मेरा थोड़ा कोडिंग में भी इंटरेस्ट है। उसी का ध्यान में रखते चलिए मैं सोच रहा हूँ, अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि सोच रहा हूँ कि स्पॉट राउंड में नहीं जाऊँ और इसे फ्रीज करूँ। तो इसी का एक एडवाइस लेना चाहता हूँ आपसे, क्या क्या बेटर रहेगा कि स्पॉट राउंड में जाना चाहिए या मंडी को लेके, जो इसमें एक देखो स्पेशलाइजेशन है मशीन लर्निंग। आपने जो मेरे को स्कोर बताया उस स्कोर के ऊपर ये जो आपको आईआईटी मंडी मिला है ये अच्छा है, अभी रिस्क लेने का बेनिफिट नहीं है। एंड जहां तक मशीन लर्निंग वगैरह की बात है तो आपको पैरेलल टू करिकुलम, आपका जो करिकुलम चलेगा उसके साथ साथ ऑनलाइन पे आप इसको लर्न कर सकते हैं मशीन लर्निंग। इनफैक्ट आपको अभी से तैयारी नहीं सर, क्या हुआ आईआईटी मंडी में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसमें 3 स्पेशलाइजेशन, मैं लिंक्डइन में लोगों के साथ बात किया हूँ, उन्होंने बताया कि जब कॉलेज में आने के बाद 3 ब्रांच स्पेशलाइजेशन रहेगी, उसमें से अपने को एक चूज करना पड़ेगा। 3 स्पेशलाइजेशन, एक मशीन लर्निंग, दूसरा है सिग्नल प्रोसेसिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन। इनमें से एक को लेना पड़ेगा, और इनमें से एक के जो कोर्स बकेट रहेंगे, उनके बास्केट रहेंगे, उसमें से अपने को कोर्स लेना पड़ेगा। सही है। हाँ, उतना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताओ, जो मशीन लर्निंग तो ये ध्यान में रख के, मशीन लर्निंग जब तुम उठाओगे तो क्या तुम सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं करोगे? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा सर। तो मशीन लर्निंग की जो बास्केट रहेंगे उसमें से 3 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, और बाकी इसमें से एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं जिन्होंने मशीन लर्निंग लिया था और बाद में जाके कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पढ़ के कम्युनिकेशन कंपनी में प्लेस हुए। यस। तो बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आपके जितने भी ये डाटा साइंस वगैरह के डोमेन्स हैं, दे आर टूल्स एंड दे आर टू बी मिक्स्ड विद योर इंजीनियरिंग डोमेन्स, लाइक मशीन लर्निंग का यूज इन सिग्नल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे को नहीं लगता यू शुड गो फॉर स्पॉट राउंड, डोंट गो फॉर स्पॉट राउंड, स्टिक टू दिस एंड स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ऑनलाइन लर्न करना स्टार्ट कर दो, मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो, सो दैट द मोमेंट यू लैंड अप इन आईआईटी मंडी आपके पास काफी नॉलेज उस चीज का ऑलरेडी हो, राइट प्रज्योत? क्लियर? यस सर। और सर एक डाउट था कि जो अगर मैंने आईआईटी सूरत एनआईटीज में अप्लाई किया और मुझे एनआईटीज में कम्युनिकेशन ब्रांच मिल रहा है, तो आईआईटी मंडी छोड़ के उधर जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? उसके लिए प्रज्योत आप एक काम करना, जैसे से आपको एनआईटी में कुछ मिलता चला जाएगा वैसे वैसे आप हमारे साथ डिस्कस करना, मेरे साथ और कैलाश सर के साथ डिस्कस करना, देन वी विल टेक अ कॉल। अभी तक तो मंडी को फाइनलाइज करो, और जैसे से सीसीएमटी में कुछ मिलेगा वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग व्हाट टू डू, राइट? पर ये डिसीजन ठीक रहेगा ना मंडी? दिस इज राइट डिसीजन, क्योंकि जो आपने मेरे को बताया है 3 पार्ट है, मशीन लर्निंग है, उसमें आप करते हैं, दैट इज द बेस्ट, बहुत अच्छा है वो, दिस इज अ गुड थिंग। और हुआ क्या, इस साल ईएससी वालों के स्कोर कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब अच्छे रैंक पे भी, जो मेरा 1600 रैंक है, उस टाइम पे स्कोर रहता था 630 के 620 के आसपास, पर इस बार कम है। ओके, तो 560 पे मिल गया तुम्हें, सही है, ठीक है प्रज्योत। आई थिंक यू स्टिक टू दिस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। वी विल बी सेविंग इट एंड आपको एक प्रोफाइल मेंबरशिप का नंबर मिलेगा और उसी में हम बाद में अपडेशन करते चले जाएंगे प्रज्योत, राइट? ओके, थैंक यू प्रज्योत।